So when a couple comes, most of the time attention is like on female only. They do not consider male as that they are even the causative factor. But it's been seen that 30 to 40% causes is because of 30 to 40% is the male factor, which is the causative agent for the infertility nowadays. Some patients are married for 6 years and still they have not have penetrative sex. This condition is called as vaginismus, in which the female partner is not receptive. आपने सही कहा कि जब वो क्लिनिक में आते हैं, they are like so much into pressure. पूरा सोसाइटल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि स्ट्रेस उनके चेहरे पे होता है कि व्हाट इफ अब क्या. सो यस, मोस्ट ऑफ द कंडीशंस आर ट्रीटेबल. अब फाइब्रॉइड के लिए तो हर फाइब्रॉइड इनफर्टिलिटी नहीं कॉज करता है और हर फाइब्रॉइड को हम ट्रीट भी नहीं करते हैं. व्हेन अ कपल हैज बीन एडवाइज्ड फॉर फर्टिलिटी, दे शुड नॉट डिले देयर कंसल्ट and they need to be standing for each other. They need to support each other because they will be the strongest support to each other. जब size egg का appropriate हो जाता है, then we retrieve them. For that, we require to do under anesthesia, under the ultrasound guidance, and with a needle through the going through the vagina, we do retrieve those eggs from the ovum. नमस्कार, डायलॉगस के प्रभा सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है. आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर रश्मि श्रेया. डॉक्टर रश्मि, आपको वेलकम करते हैं हमारे चैनल में. आपसे एक खास विषय पर हम आज चर्चा करेंगे, इनफर्टिलिटी. आप हमें बताएंगे कि आज सैकड़ों कपल हैं, वुमेन हैं जो फेस कर रहे हैं इनफर्टिलिटी के दौर से वो गुजर रहे हैं. इसका रीज़न क्या है? व्हाट इज़ इनफर्टिलिटी? मैं ये सबसे पहले आपसे समझना चाहती हूँ. आप इनफर्टिलिटी के एक्सपर्ट हैं. आपके पेशेंट आपके पास जो आते हैं उनको आप लैप्रोस्कोपी के थ्रू बहुत सारे इस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं कि ताकि वो इनफर्टिलिटी उसके अंदर से वो चला जाए. कोई भी जांच जो आप करते हैं तो वो जांच करके आप बताते हैं कि येस, शी इज़ ओके फॉर प्रेगनेंसी. तो हमें बताइएगा किस तरह का जांच आप करती हैं, कैसे आप ये ट्रीटमेंट को आगे लेके जाती हैं, और ये इनफर्टिलिटी किस एज ग्रुप के अंदर ज़्यादा आप देख रही हैं आजकल? थैंक यू सो मच सुमित्रा जी, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए. और एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जैसा कि आपने कहा, इनफर्टिलिटी लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं. एंड व्हाट वी नीड इज़ टू create awareness. People should talk about this because people are suffering in silence. We need to come out and we need to stand with them, that they are not alone in their journey. So I am Dr. Rashmi. As you said, I am a gynecologist and a laparoscopic surgeon. So basically fertility enhancing surgeries I do. So coming to first and foremost, that what is infertility? Exactly infertility होता क्या है? So अगर typically हम बात करें एक कपल की जो कि 25 to 35, which is the reproductive age group है हमारे कंट्री में. So उस age group में if they are trying to conceive regularly for unprotected sex for 1 year and they are not able to conceive during this time frame, then we call them as infertility. And this, if the couple belong to the age group of 35 and above, then this time frame is lower down to 6 months. Okay. Yeah. So तो आपके पास ऐसे पेशेंट्स भी आते होंगे जो रेगुलर, जो नॉर्मल, जो शादी के बाद, जो 1 साल के बाद आ रहे हैं, 1.5 साल के बाद आ रहे हैं, कि जो भी ऐसे दिखाने के लिए भी आ जाते हैं. As I said that normally it is 1 year. 1 year. So many a times what happens that a patient do come within 3-4 months that they are trying and they are not getting pregnant. So no, we do not
call them as infertile patient. And some people are, they are married for 3-4 years but they are staying apart. मिलते ही नहीं है. हम पूछते हैं कि how many times you have met in the entire month. They have hardly ever met. So it cannot be, that cannot be called as infertility. If some patients are married for 6 years and still they have not have penetrative sex, this condition is called as vaginismus, in which the female partner is not receptive. They do get severe pain while even thinking about a penetrative sex. So in these cases, it is not the physiological, but it is like coupling. They are not able to couple. So this can also lead to infertility, but as such it is not a causative agent. मैम यहाँ एक मैं प्रश्न करूँगी आपसे. देखिए, हम तो डॉक्टरी के लैंग्वेज में आप बोलेंगे यू आर अ डॉक्टर, आपके पास बहुत तरीके के पेशेंट आते हैं, मगर ये जो मेंटल ट्रॉमा और ये एक मेंटल प्रेशर और एक ये अंदरूनी एक होती है ना कि मैं क्या माँ बन सकूँगी, क्या हमारे बच्चे होंगे, इस तरह का जो साइकोलॉजिकल ये जो बातें अंदर चलती हैं एक लेडी की या एक हस्बैंड वाइफ के अंदर, तो यहाँ तो ज़्यादा जो समस्या है ना वो है काउंसलिंग का. क्या सोचेंगे इस वक्त, इस पीरियड में जो कपल आपके पास आ रहे हैं, सबसे पहले आप उनको रादर समझाएंगे कि ये दिस इज़ अ मेडिकल थिंग्स, वो तो एक हो गया, टेस्ट किया आपने, आपको पता चला कम ज़्यादा क्या है, आपने उनको बताया. इनफर्टिलिटी में आपके जो इन्हांसिंग जो प्रोसेसेस हैं वो आपने किया, फिर भी आपको समझाने का जो तरीका होगा वो क्या होगा? आपने सही कहा कि जब वो क्लिनिक में आते हैं, दे आर लाइक सो मच इनटू प्रेशर. पूरा सोसाइटल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि स्ट्रेस उनके चेहरे पे होता है कि व्हाट इफ, अब क्या, अब कैसे होगा, हाउ दे हैव बीन ट्राइंग फॉर 1 year. हर तरफ से उनको प्रेशर आ रहा होता है, कब खुशखबरी मिलने वाली है. सो फ्रॉम एवरीवेयर दे कीप ऑन गेटिंग क्वेश्चन. शादी को 2 साल हो गए हैं, शादी को 4 साल हो गए हैं, अब कब माँ बनोगी तुम. सो दे डू अंडरगो सो मेनी क्वेश्चंस every now and then that they are very much stressed. And I'll tell you that this stress, it aggravates their problem. So definitely इससे हेल्थ इश्यूज बन जाते हैं, मेंटल इश्यूज बन जाते हैं. So first of all, they are undergoing so much of issues on themselves, and above all they are getting the anxiety and the pressure. So definitely it builds up. So I will tell you that what exactly infertility is. So when they come to me, then what exactly I do, how do I evaluate them? First and foremost is a good history taking, that how they are they together, how the support between the two partner is there, because बाहर वालों को तो आप देख लोगे, but your partner should be understanding, they should be emotionally available to each other. So कहा जाता है कि फॉर 3 days एटलीस्ट हमें वीक में संबंध बनाना होता है. और ड्यूरिंग ओव्यूलेशन पीरियड, जो कि हम फर्टाइल पीरियड कहते हैं, महीने के हर 11वें दिन से 17वें दिन तक हम जनरली कहते हैं कि दे आर मोस्ट फर्टाइल. सो ड्यूरिंग दैट टाइम आर दे टुगेदर, एंड ये हिस्ट्री लेते हैं. आफ्टर दैट आई डू इवेल्युएट देम लाइक विथ सर्टन टेस्ट. एंड बिफोर इवेल्युएटिंग, जैसा कि आपने पूछा कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी, सो बिफोर गोइंग टू द कॉजेज आई टेल देम, आई एक्सप्लेन देम हाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ दिस फर्टिलाइजेशन. बच्चा आता कैसे है, क्या प्रोसेस है. एंड वंस दे अंडरस्टैंड दैट कि इस प्रोसेस में कहीं पे भी अगर रुकावट होती है तो दैट कैन लीड टू their problem. So रुकावट की वजह क्या क्या होगी? So when a couple comes, most of the time attention is like on female only. They do not consider male as that they are even the causative factor. But it's been seen that 30 to 40% causes is because of 30 to 40% is the male factor, which is the causative agent for the infertility nowadays, because of the lifestyle, because of the stress factor, their working sedentary lifestyle, as I said, working on the laptops, wearing tight clothings, and the most fascinating of all to them is like they are mostly for hours they are in the gym.
and taking the supplements. So this is this is a fact. This This also is can be a, I mean, factor for the, oh my goodness, because gym करना, सेहत बनाना, supplements लेना, ये तो एक शक्तिशाली, yes. हाँ, एक अच्छा बताते हैं ना कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है जी, बट हर किसी भी चीज़ का एक्सेस इज नॉट गुड. सो एक्सेस ऑफ जिमिंग एंड एक्सेस ऑफ सप्लीमेंटेशन इज शुड नॉट बी टेकन. स्पेसिफिकली these supplements do contain steroids. Some of the supplements do contain steroids, and which causes male infertility. And coming to female factors, so for a female, age is the most important factor. So every month a woman is born with a specific number of eggs, and with age it declines in the quality and quantity. And every month, from starting from their puberty till the menopause, they release one egg. That is after during the ovulation period. So अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात हम करें तो इट कंसिस्ट ऑफ यूट्रस, दैट इज बच्चेदानी, एंड ओवरीज, दैट इज अंडेदानी. सो इन दोनों को कनेक्ट जो कर रहा होता है उसको हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं. अब हर महिला जब वो जन्म लेती है तो उनके पास स्पेसिफिक नंबर ऑफ एग्स होते हैं, और विथ एज, विथ टाइम वो डिक्लाइन करता है, क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी. अब हर महीने जब एक बार उनकी माहवारी स्टार्ट होती है तो वो हर महीने उनका ओव्यूलेशन के समय एक एग रिलीज होता है, एंड वो प्रिपेयर होती है, पूरे जो उनका यूट्रस होता है वो लाइनिंग बनती है, वो प्रिपेयर होती है टू गेट द बेबी. सो वंस जब ये शुक्राणु जाता है, ट्रैवल करता है फ्रॉम द सर्विक्स टू यूट्रस, इट हैज़ टू ट्रैवल टिल द फलोपियन ट्यूब, एंड इधर से ये एग जो होता है वो रिलीज होकर के वो भी यहाँ पे फलोपियन ट्यूब में आते हैं. वहाँ पे वो फर्टिलाइजेशन होता है इन द फलोपियन ट्यूब, एंड आफ्टर दैट वंस द एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड, बच्चा 2 से 3 दिन के जब एम्ब्रियो बन जाता है, देन इट माइग्रेट्स टू द यूट्रस, एंड उसमें फिर वो बच्चा बड़ा होता है. अब आप ये देखेंगे, दिस इज द नेचुरल प्रोसेस, दिस इज द नेचुरल प्रोसेस. मगर जहाँ नेचुरल नहीं है, सो अब यहाँ पे कहीं पे भी अगर हम ब्रेक, कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो फिर हमें वो प्रॉब्लम होगी फर्टिलाइजेशन में. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे ये अंडेदानी है, अब जैसा कि हमने कहा कि हमारे पास हर एग की क्वांटिटी जो है वो सीमित है, तो अगर एजिंग बढ़ती है लाइक 25, 35 हर महीने वो रिलीज होता है, सो अब ये क्वालिटी में भी डिक्रीज हो जाएगी, क्वांटिटी में. तो इसके पैरामीटर को नापने के लिए हमारे पास होता है कि हम अल्ट्रासाउंड से मेजर करते हैं. तो अगर इसकी अगर अंडे में प्रॉब्लम हो गई तब हमारी इनफर्टिलिटी हो जाएगी. अगर वहाँ के सराउंडिंग में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई जैसे कि सिस्ट हो गया है, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, या कोई फ्लूइड फिल्ड सम सिस्ट इज देयर, तब ये रिलीज होने में प्रॉब्लम होएगी. या फिर कोई अडहेजन्स हैं कुछ के कारण वहाँ पे, फॉर इंस्टेंस अगर ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है कभी, या कोई इन्फेक्शन है जिसके कारण कि वहाँ पे अंडे को फलोपियन ट्यूब जाने में, ट्रैवल करने में दिक्कत हो रही है, तो वो वहाँ पे पहुँच नहीं पाएगी. या फिर अगर ट्यूब ब्लॉक हो गई है किसी भी कारण से, चाहे तो ट्यूब में पानी भर गया जिसको हम हाइड्रोसैल्पिंग्स कहते हैं, या वहाँ पे ब्लड जमा हो गया जिसको हम हिमाटोसैल्पिंग्स कहते हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है, या फिर यूट्रस में बच्चेदानी में कोई फाइब्रॉइड है, या एडिनोमायोसिस है, या लाइनिंग में कोई दिक्कत आ रही है, अगर लाइनिंग के पास कोई फाइब्रॉइड है, सो यहाँ पे अगर ये कुछ भी होता है तो दैट कैन अफेक्ट द फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी में. ट्रीटेबल है, क्योंकि ये जो फाइब्रॉइड तो हम पहले नहीं सुनते थे इतना, आजकल बहुत सुनते हैं. तो ये तो ट्रीटमेंट से चली जाती है ना. सो येस, मोस्ट ऑफ द कंडीशंस आर ट्रीटेबल. अब फाइब्रॉइड के लिए तो हर फाइब्रॉइड इनफर्टिलिटी नहीं कॉज करता है, और हर फाइब्रॉइड को हम ट्रीट भी नहीं करते हैं. आजकल अल्ट्रासाउंड, हमारी स्क्रीनिंग मोडालिटी जो है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड्स बहुत हर जगह अवेलेबल है, एंड बिकॉज ऑफ दैट अवेलेबिलिटी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं फाइब्रॉइड 1-2 सेंटीमीटर के भी फाइब्रॉइड लेकर के कि मैम इसका ट्रीटमेंट करना है. नहीं, हमें हर फाइब्रॉइड को ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं होती है. बट
जैसा मैंने कहा कि लाइनिंग होती है हमारी, अगर अंदर बच्चेदानी की लाइनिंग के पास अगर आपका फाइब्रॉइड है तो वो अगर 1 से 2 सेंटीमीटर का भी है तब भी हमें वो रिमूव करने की ज़रूरत पड़ सकती है, बिकॉज वो बच्चे जो है वो उस लाइनिंग में चिपकते हैं। अगर वहाँ पे फाइब्रॉइड है तो वो चिपकेगा नहीं, क्योंकि बहुत माइन्यूट होते हैं, स्मॉल होते हैं, 3 to 5 डेज का एम्ब्रियो होता है। अगर वो वहाँ पे नहीं चिपक पाएगा बिकॉज ऑफ दैट फाइब्रॉइड, बिकॉज ऑफ दैट पॉलिप, देन इट कैन अफेक्ट। सो इन दोज कंडीशन वी नीड टू do the surgery to remove that fibroid, to remove that polyp, or if there is any septum, then we do those surgeries, and it has been seen that after those surgery they do become pregnant. This is again we are talking about the natural pregnancy, right? अगर ये पॉलिप आप हटा दिए, ये फाइब्रॉइड अब अगर आप हटा देते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, दवाई देती हैं, उसके बाद ये जो कपल है ये नॉर्मली कंसीव करते हैं। Yes. अगर नॉर्मली तब भी ना करे तो लोगों को लगता है कि IVF is the only treatment, but before IVF also we have many options available these days. So before coming to the treatment, I would मैं चाहूँगी कि अदर रीजंस और बताना, इन्यूमरेट करना, मैं कुछ रीजंस इन्यूमरेट करना चाहूँगी कि जो फर्टिलिटी के कारण हैं। फॉर एग्जाम्पल द लाइफस्टाइल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर राइट नाउ, सो एंड दैट is leading to other problems. For example, PCOS. Many women today, they are coming with PCOS, and PCOS में प्रॉब्लम क्या होती है? It is like fluid filled cyst, which is, so normally जो मैंने आपको बताया कि हर साइकिल में एक एग रिलीज होता है, so वो एक जब वो एक स्पेसिफिक साइज का हो जाता है तब वो रिलीज होता है। PCOS में क्या होता है कि वो साइज छोटे रह जाते हैं, वो रिलीज नहीं हो पाते हैं, और उसके कारण फिर वो महीना भी ठीक से नहीं आता है। तो अगर PCOS रिलेटेड है इरेगुलर मेंसेस से, और PCOS में क्वालिटी ऑफ एग इज अफेक्टेड अ लिटिल, सो इन दोज केसेस PCOS can lead to infertility. If there is endometriosis, endometriotic cyst, so they can lead to infertility. And fibroids, as I said, septum, endometrial polyp, these are the reasons. And once they are removed, the patient can be advised to try on their own, and spontaneous pregnancy is possible in those cases. Now coming that even after doing all these, they are not able to conceive. So what we can do is that in case of PCOS or in case of other, when we are trying, we can just enhance their ovulation. जब वो एक एग रिलीज होता है हर महीने, बट हम महीने के दूसरे दिन से बुलाते हैं और उनको हम कुछ दवाइयाँ देते हैं जो कि 5 दिनों के लिए चलती है। Day 2 से Day 7 तक हम एक दवाई देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो एग का नंबर इंक्रीज करता है और साइज भी इंक्रीज करता है। और फिर हम उन्हें बताते हैं कि टाइम्ड इंटरकोर्स, दैट इज जब ओव्यूलेशन का समय होता है तो हम उन्हें बोलते हैं कि आप रिलेशन मेंटेन करें, एंड दे गेट प्रेग्नेंट on their own. So this is also some patients do get benefited by this ovulation induction, or what we call as super ovulation. Then अगर इससे हो जाता है तो ठीक है। समटाइम्स व्हाट वी कॉल इज इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें क्या होता है, जैसे ओव्यूलेशन हमने कहा कि दवाइयाँ हम देते हैं, साथ में हम इंजेक्शंस भी देते हैं इसमें, और उसमें जो हस्बैंड के पैरामीटर्स, जैसे मैंने हमेशा कहा कि हस्बैंड को भी हम उनके भी पैरामीटर्स हम चेक कराते हैं। आफ्टर गेटिंग द हस्बैंड पैरामीटर एंड इट्स नॉर्मल, देन वी डू इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसमें कि हस्बैंड को सीमेन लेकर के हम वो प्रिपेयर करते हैं, जिसमें बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन होता है, सीमेन का कॉन्सेंट्रेशन होता है, और वो कॉन्सेंट्रेटेड प्रिपेयर्ड सीमेन वी पुट इनसाइड द सर्विक्स, एंड इससे स्पॉन्टेनियस और ओव्यूलेशन इंडक्शन से ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है टू गेट प्रेग्नेंट। एंड इवन इफ IUI fails, so I do not so मैं बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ कि मल्टीपल IUI साइकिल्स किया जाए, बिकॉज कहीं ना कहीं फिर वो अंडे कम हो रहे होते हैं। सो 3-4 IUI साइकिल आई डू सजेस्ट, मोर देन दैट आई डू नॉट सजेस्ट। तो 3 या 4, 2 से 3 या 2 से 4 के बीच प्रेगनेंसी संभव है जी। अगर होना है तो वो हो जाएंगे, बट ये IUI हम तभी करते हैं जब हम ट्यूबल
फैक्टर देख लेते हैं कि ट्यूब तो बंद नहीं है, क्योंकि ये वही रास्ता है। अगर ट्यूब ब्लॉक्ड होती है तो हमें एक बाईपास करना होगा उस रास्ते को, और उसका है आंसर IVF। और देयर इज एक और कंडीशन होती है, जैसे कि हमने सब कुछ किया और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, सो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी भी होती है कि हमें कोई रीज़न नहीं मिल पा रहा है एंड स्टिल द कपल इज़ नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट, सो उसको हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। और after evaluating for 2 years we do suggest IVF in those cases as well. अच्छा, IVF के लिए मैम जब IUI से सक्सेसफुल नहीं हुए तब जाके IVF, जी, इसमें मेल फीमेल बोथ का ही देखा जाता है कि ये जो इनफर्टिलिटी के कॉज जो हैं इट्स ओनली द फीमेल पार्ट, हमने अपने एक्सप्लेन किया, और द मेल पार्ट, यहाँ भी मेल के लिए भी कुछ होता है रीजंस not to get pregnant. Nowadays 30 to 40% causes are because of the male partner, and they are coming with azoospermia, oligospermia, that is sperm की क्वालिटी बहुत कम हो गई है, या फिर एस्थेनोटेराटोजूस्पर्मिया हम कहते हैं, जिसमें कि स्पर्म्स जो होते हैं वो ब्रेक हो रहे होते हैं, या मॉर्फोलॉजी उनकी खराब होती है, या दे आर नॉट मोटाइल इनफ टू pass this exam basically, so they are not they cannot swim to go till the ovum. So these all our factors are there, and we do take care of those parameters. And in IVF we do have when we do, in case of male factor is there, then we do IVF. First I'll tell you about the IVF, what exactly it is, and if we have male factor then we do IVF plus ICSI, जिसमें कि हम स्पर्म को डायरेक्टली इंसर्ट करते हैं ओवम के उसमें साइटोप्लाज्म में, सो उसको ICSI हम कहते हैं। And then if the sperm are like very less, some obstruction is there, then we directly retrieve them. What we in that process we call it as TISA, or we do micro aspiration, which is called as MISA. So we do IVF plus ICSI or IVF plus TISA. सो दिस अ लॉन्ग प्रोसेस मैम। इसमें तो जो कपल की हालत तो मेंटली तो खराबी हो जाती है। सो IVF का प्रोसेस मैं बताना चाहूँगी कि व्हाट एग्जैक्टली हाउ वी डू IVF। सो उसमें जो हार्मोन्स हमारे फीमेल हार्मोन्स होते हैं, वही उसी फीमेल हार्मोन्स को मिमिक करते हुए इंजेक्शंस होते हैं, जो कि महीने के दूसरे दिन से लेकर के 14वें 15वें दिन तक अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द फॉलिकल जो बढ़ते हैं ना, हम उन्हें देना होता है। एंड देन जब साइज एग का अप्रोप्रिएट हो जाता है, then we retrieve them. For that we require to do under anesthesia, under the ultrasound guidance, and with a needle through the going through the vagina, we do retrieve those eggs from the ovum. So though as it is under the anesthesia, it is not painful procedure, but yeah, patient do feel that they are undergoing a surgery and all. And in the next cycle, we generally, after the embryo is formed, egg retrieval procedure when is completed, then in the laboratory the ovum and the semen which is being prepared and the sperms, they are coupled together. So, and the embryo is formed. So in the next cycle what we do, that same embryo we transfer. So nowadays we do transfer in the day 3, day 5. Day 5 embryo are being transferred. मैम अक्सर सुना है कि IVF में ज़्यादातर ये ट्विन बेबी होने का बहुत ज़्यादा चांसेस भी होते हैं, ऐसा कुछ क्या है? दिस इज अ मिथ और दिस इज रियल? No, it is not always that we have twins. So it is on the patient's choice. If they want only single transfer, then we cannot do double transfer. We do embryo transfer for for better better chances to get pregnancy. But now it is single embryo transfer. Now the protocol is for single embryo transfer. तो पेशेंट चाहते हैं कि एक ही ट्रांसफ़र करे, एक ही हो, फिर हम तो एक ही ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसमें प्रेगनेंसी का चांसेस अगर बहुत हाई है तो हो भी जाता है। यस, सो स्पॉन्टेनियस का अगर हम कहते हैं कि 7 to 10% है, तो IVF का इट इंक्रीजेज टू 30 to 60% to 70% समवेयर इन अ वेरी गुड सेटअप
of the, because everything which is going inside the womb in your body, we have to make that laboratory that well equipped to Yes. to for that baby to grow. So मैम आज के डेट में टेक्नोलॉजी बोलिए, द मशीन्स बोलिए, एवरीथिंग हैज़ बिकम सो गुड. yes, जो हायर एक टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें से आपकी ये फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी को फर्टिलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं आप, और बहुत खुशियाँ मिल रही हैं. आप लोग जो डॉक्टर्स, पर्टिकुलरली इस फील्ड के जो डॉक्टर्स हैं, इसमें आप लोग एक फैमिली को ना वो दिन दिखा रहे हो जो अनएक्सपेक्टेड था उनके लिए, और वो कभी सोचा नहीं था कि ये पॉसिबल है. मगर इसके जो दौरान, जो ये जर्नी के दौरान, जो इनके जो मेंटल हेल्थ कंडीशन में ये लोग जाते हैं ना, तो इसमें आप थोड़ा सा क्या मोटिवेशनल जो टॉक्स आप उनके साथ करते हो, मैं सुनना चाहूँगी, और दर्शक भी सुनना चाहेंगे, इसलिए कि बहुत लोग हैं, दे डोंट कम आउट, यू नो, दिस आउट ऑफ दे डोंट टेल पीपल, कंसल्ट पीपल, कि अगर डॉक्टर के पास जाते भी हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं बहुत, मतलब धक्का खा के वो जाते हैं कि नहीं हम ऐसे नहीं चले जाएंगे, घर से बहुत प्रेशर होता है तभी जाते हैं. तो उस वक्त एक डॉक्टर होने के नाते आप उनको क्या समझाते हैं? so it is most satisfying to see them pregnant, कि वो प्रेगनेंसी जब हो जाती है तो हमें भी उतनी ही खुशी मिलती है. बट एज आपने जैसा सही कहा कि जब तक जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तो क्या, वो एक्चुअली में बहुत सफ़र कर रहे होते हैं, और उस समय उनको ना एडवाइसेस चाहिए होते हैं ना कुछ, बस जो चाहिए होते हैं वो मोटिवेशन एंड एम्पैथी. They want somebody to listen to them, to hear them out. That is very important. And being a gynecologist and being a fertility expert, just supporting them throughout their journey is so important. कि failures आते रहते हैं बहुत बार, किसी का पेशेंट का पहली बार में ही सक्सेस हो जाता है, बट जिनका नहीं होता है 6 बार में भी हुआ है, बट वेटिंग टिल 6 times, it's very difficult. And for the doctor also, for the patient, because it just उनको वो financially, emotionally और health wise also it drains them. तो बहुत difficult situation होती है, but as a gynecologist we have to support them throughout their journey. And during that time we have to tell them that they cannot be that stressed that they take toll of their health, that they are not able to enjoy that when they get pregnant. So during that time we have to support basically rather than advising them. तो आप बताइए कि दोनों का सपोर्ट कैसे होना चाहिए, एक हस्बैंड वाइफ. हमने जितना देखा है कि घर वाले भी बहुत ब्लेम करते हैं. When a couple has been advised for fertility, they should not delay their consult, and they need to be standing for each other. They need to support each other, because they will be the strongest support to each other. And rather we see that they supporting each other, they blame each other. No, they do not have to blame for sure, because people are outside there are sitting them to blame. So it's very much required for them to support each other. And for people also, I would like to tell that they are already suffering. They should not ask these questions, like because Very there's personal. this These are very personal personal, yeah. choice whether they want to have baby. What are their situation? One should not be keep on asking questions regarding somebody's fertility. And so as a gynecologist, I would like to tell that nowadays, because of the innovation in so much of technology, we have come far. And it's possible. They should not lose their hope. ग्रेट मैम, टॉकिंग टू यू. एंड आज हमारे दर्शक को ये पता चला कि अगर कोई भी प्रॉब्लम, इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम कोई भी कपल फेस कर रहे हैं, ये शो आप देख रहे हैं, तो जल्द से जल्द वो अपने डॉक्टर के पास जाए, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाए, कंसल्ट करे, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करे. रादर वो छिपा के कुछ ना बैठे और देर ना करे, ताकि पूरे प्रोसेस में डिले ना हो जाए. जी. सो इसी तरह हमारे इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स हमारे लिए बैठे हैं, हमें खुशियाँ देने के लिए बैठे हैं, और
प्रेगनेंसी ज़रूर हो सकती हैं, देर कुछ तो अड़चन आती हैं बीच में, मगर वो भी ऐसा नहीं है कि वो लगातार वो अड़चन आते रहेंगे। इससे आप प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है इसका, और प्रेग्नेंट हो सकते हैं। प्रोसेस IUI, IVF बहुत सारे हैं, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस में है। सो प्लीज़ कंसल्ट अ डॉक्टर, रादर नॉट ब्लेम ईच अदर। सो थैंक यू सो मच। और डायलॉग्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। So when a couple comes, most of the time attention is like on female only. They do not consider male as that they are even the causative factor. But it's been seen that 30 to 40% causes is because of 30 to 40% is the male factor, which is the causative agent for the infertility nowadays. Some patients are married for 6 years and still they have not have penetrative sex. This condition is called as vaginismus, in which the female partner is not receptive. आपने सही कहा कि जब वो क्लिनिक में आते हैं, they are like so much into pressure. पूरा सोसाइटल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि स्ट्रेस उनके चेहरे पे होता है कि व्हाट इफ, अब क्या। सो यस, मोस्ट ऑफ द कंडीशंस आर ट्रीटेबल। अब फाइब्रॉइड के लिए तो हर फाइब्रॉइड इनफर्टिलिटी नहीं कॉज करता है, और हर फाइब्रॉइड को हम ट्रीट भी नहीं करते हैं। व्हेन अ कपल हैज बीन एडवाइज्ड फॉर फर्टिलिटी, दे शुड नॉट डिले देयर कंसल्ट, एंड they need to be standing for each other. They need to support each other because they will be the strongest support to each other. जब size egg का appropriate हो जाता है, then we retrieve them. For that, we require to do under anesthesia, under the ultrasound guidance, and with a needle through the going through the vagina, we do retrieve those eggs from the ovum. मैम, अक्सर सुना है कि IVF में ज़्यादातर ये ट्विन बेबी होने का बहुत ज़्यादा चांसेस भी होते हैं। ऐसा कुछ क्या है? दिस इज अ मिथ और दिस इज रियल? No, it is not always that we have twins. So it is on the patient's choice. If they want only single transfer, then we cannot do double transfer. We do embryo transfer for for better better chances to get pregnancy. But now it is single embryo transfer. Now the protocol is for single embryo transfer. सो IVF का प्रोसेस मैं बताना चाहूँगी कि व्हाट एग्जैक्टली हाउ वी डू IVF. सो उसमें जो हार्मोन्स, हमारे फीमेल हार्मोन्स होते हैं, वही उसी फीमेल हार्मोन्स को मिमिक करते हुए इंजेक्शंस होते हैं, जो कि महीने के दूसरे दिन से लेकर के 14वें-15वें दिन तक अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द फॉलिकल जो बढ़ते हैं ना, हम उन्हें देना होता है. एंड देन जब साइज एग का अप्रोप्रिएट हो जाता है, then we retrieve them. For that, we require to do under anesthesia, under the ultrasound guidance, and with a needle through the going through the vagina, we do retrieve those eggs from the ovum. So though as it is under the anesthesia, it is not painful procedure, but yeah, patient do feel that they are undergoing a surgery and all. And in the next cycle, we generally, after the embryo is formed, egg retrieval procedure when is completed, then in the laboratory, the ovum and the semen which is being prepared and the sperms, they are coupled together. So, and the embryo is formed. So in the next cycle, what we do, that same embryo we transfer. So nowadays we do transfer in the day 3, day 5. Day 5 embryo are being transferred. Great, ma'am, talking to you. एंड आज हमारे दर्शक को ये पता चला कि अगर कोई भी प्रॉब्लम, इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम कोई भी कपल फेस कर रहे हैं, ये शो आप देख रहे हैं, तो जल्द से जल्द वो अपने डॉक्टर के पास जाए, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाए, कंसल्ट करे और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करे। रादर वो छिपा के कुछ ना बैठे और देर ना करे, ताकि पूरे प्रोसेस में डिले ना हो जाए जी। सो इसी तरह हमारे इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स हमारे लिए बैठे हैं, हमें खुशियाँ देने के लिए बैठे हैं। और प्रेगनेंसी ज़रूर हो सकती हैं, देर कुछ तो अड़चन आती हैं बीच में, मगर वो भी ऐसा नहीं है कि वो लगातार वो अड़चन आते रहेंगे। इससे आप प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है इसका, और प्रेग्नेंट हो सकते हैं।
प्रोसेस IUI, IVF, बहुत सारे हैं आजकल, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस में है. सो प्लीज़ कंसल्ट अ डॉक्टर, रादर नॉट ब्लेम ईच अदर. सो थैंक यू सो मच. और डायलॉग्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें.